concept of our Sarva Dharma Samabhav, which is intrinsic to our culture, is also the guiding light for our constitutional values. We, the people of India, get ourselves this constitution. देख रहे हैं चैनल 1। आज मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक स्पेशल सेशन का आयोजन पार्क होटल में किया गया है। हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। कैसा रहेगा ये सेशन, आइए देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। The Honorable former President of India, Dr. Ramnath Kovind, and the Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose. A very warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, the national anthem of India will be played. That is India, sets it apart from the rest of the world and has kept it the same for thousands of years, in spite of the series of aggressions for no less than another 1,000 years. It is a moment of immense pleasure for me to be a part of this gathering today. It is a unique moment as I stand here today. I am here to speak on the subject, as you all know, the ethos of Indian Constitution, unity in diversity. In a city like Calcutta, which is known for its rich political and cultural heritage, and to a gathering which includes the best of brains in industry and commerce, frankly speaking, this itself is the biggest example of the principle unity in diversity. Normally, I have seen chambers organize events suitable to their business and trade interests. But here I find a deviation by your chamber. I am extremely happy that your chamber has chosen to enlighten our people about the constitutional ethos. Ladies and gentlemen, I am also happy to know that your organization is more than 120 years old chamber, which started its journey in an environment of national upsurge, and its prime objective has been to provide a sense of integrity, secularity and idealism to the business community of India, and you all have been able to do so by the strength of our Constitution. Ladies and gentlemen, Indian Constitution is more than a principle to be adhered. In the Indian context, it is almost a way of life, for it is heavily inspired by the traditions and culture of our land. The subtle impact of this culture and heritage can be inevitably perceived in our Constitution. We all know that since ancient times, our country has seen many rulers and kingdoms with varied ideologies ruling this land. One of the biggest impacts of such a political scenario has been that we have come to accept diversity in our lives. It was this sense of acceptability which has formed the essence of our Constitution. The concept of our Sarva Dharma Samabhav, which is intrinsic to our culture, is also the guiding light for our constitutional values.
The secular credentials which our constitution has established are based on these principles and thereby forming the sound foundation of a unified country, even though diverse in its religion and culture. Ladies and gentlemen and friends, I am delighted to be here to share a platform with one of the most respected and revered elder statesmen of the democratic world, our very own beloved former President, Honorable Ramnath Kovind ji. When I sit near him, I was sitting near humility writ large. As Shakespeare said, patience on a monument. He is humility in a personified. It makes me more humble. That is a message which the simplicity and honesty and integrity of this great soul disseminates among the new generation as well. I am here to dwell on the important topic, Constitution of India and unity amidst diversity. It was Lester B. Pearson, the statesman of Canada, who said, "It is easy to frame a constitution, but difficult to make it work." India has framed a constitution and made it work. The preamble to the Constitution of India says, "We the people of India, having resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to strive to seek to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation, do enact and give to ourselves this constitution. We the people of India give to ourselves this सीसीआई के ऊपर constitution. आज एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया है। सर, इसके बारे में क्या बोलिए? देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ जो वी आर वेरी ग्लैड जो मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अदर्स ऐसा एक प्रोग्राम बनाया है। तो ये प्रोग्राम में हम लोग का कॉन्शसनेस आना चाहिए, ज़रा से बंगाल में ये कॉन्शसनेस आना चाहिए। अभी ममता दीदी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला रहा है, यहाँ प्रोग्रेस ग्रोथ करवा रहा है। अगर ऐसे चले तो इसमें इन फ्यूचर में हम लोग का ग्रोथ आ सकता है। और दूसरा जो है, इसमें ग्रोथ की काम नहीं, एक साथ से करना। जो एक चीज़ हम लोग को अभी बंद हो गया बंगाल में, आपको मालूम है मैम, जो अभी स्ट्राइक वगैरह सब कुछ बंद हो गया। तो अभी अगर इकट्ठा करके इफ़ आवर इंटेंशन इज़ गुड एंड वर्क टुगेदर, वी कैन ग्रो। रह गया अदर्स स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा भी डिस्टर्ब है। मणिपुर का तो आपको सुने ही है। वी आर वेरी सैड एंड क्या बोले, कॉन्डोलेंस बोल रहा हूँ। और साथ में दीदी भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा काम थैंक्सफुल टू यू ऑल प्रेस रिपोर्टर, जो वहाँ जाके हम खुद आंखों देखे वहाँ जाके आप लोग रिपोर्ट कवरेज किए हैं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल। और कविंद जी का, रामनाथ कोविंद जी का जो स्पीच था, दैट इज़ वेरी गुड एंड स्पेशली टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर था। तो इसको हम लोग को बहुत काम आएगा इन फ्यूचर में। और ये पॉइंट अगर हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं तो वी कैन ग्रो इन फ्यूचर्स ऑल्सो। सर, जैसा कि मणिपुर के बारे में आप बताएं, मणिपुर की जो वारदात हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं कि देखिए ये चीज़ इस टाइम बोलने का टाइम नहीं है मेरा, क्योंकि और दिन देखना है। लेकिन इतना बोल सकता है ये बुरा चीज़ हुआ। और ये जस्ट मतलब क्या बोले आपको, ये सम इंडल्जेंस इज देयर ऑन बिहाइंड ऑफ दैट। दिस इज़ नॉट ए ओरिजिनल केस एंड आवर Bengal chief ministers also helping and doing on
अबाउट ऑन दैट प्रोसेस। तो इसका पीछे पॉलिटिकल सेंस है, इतना हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। नहीं तो इतना दिन से कुछ हुआ नहीं, अचानक कैसे हो सकता है मैम, ये तो आपको देखना है। और धीरे धीरे क्या बोलना चाहते हैं आप? व्यूअर्स को बोलना चाहता है, आप लोग शांति रखिए और सब जो भी काम करना है, जो भी कुछ करना है हिसाब से कीजिए, क्योंकि हर घर में अगर कोई डेथ हो जाता है ये अच्छा नहीं है। डेथ को लिए हम लोग का सभी हम लोग सोचते हैं। अगर हम लोग ठीक ठाक रहे, ठीक से काम करें और मिलजुल के काम करें और मिलजुल के अंडरस्टैंडिंग करें। और पॉलिटिकल लीडर के लिए मेरा इतना बोलना है कि आप लोग सब पार्टी मिल के इकट्ठा करके इमीडिएटली एक सॉल्यूशन का रास्ता आ जाए ताकि सॉल्व हो जाए, नहीं तो ये आग धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी में फैला जाएगा। सर, मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया है, क्या बोलिए? ये तो बहुत अच्छा है, लोगों को अपना अपना प्रोग्राम को दिखाने के लिए अच्छा रहता है और लोग अपने आप को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को चांस नहीं मिलता, कभी अपने आप को बहुत टैलेंटेड होते हुए भी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। और एक बहुत अच्छा ये मंच है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी हम बढ़ा सकते हैं और लोगों को और समाज के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज की भलाई के लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर राठौर संजय सिंह राठौर नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर है और हमारा खूबी है कि मैं बॉडी का कोई भी पेन को 40 से 60 सेकंड के अंदर में ठीक कर सकते हैं। अगर वेस्ट पेन है तो मात्र 40 से 60 सेकंड लगता है। लोगों को ज़िंदगी भर कमर में बेल्ट पहन कर घूमने का ज़रूरत नहीं है, लोग उससे मुक्ति पा सकते हैं। किसी उम्र में घुटने का प्रॉब्लम है, बॉडी का स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, किसी भी पेन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर, आपका सर चैम्बर कहाँ पे है, लोग आपसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा? नंबर अपना बता दीजिए। मेरा नंबर है 7980375159। वन सेकेंड 7980375159। सर, आपका एड्रेस चैम्बर का थोड़ा। मेरा बड़ा बाजार में चैम्बर है, वो मालापारा पेट्रोल पंप के पास में, डॉक्टर राठौर क्लिनिक के नाम से हमारा है। और एनी क्वेश्चन? सर, मान लीजिए लेडीज़ में अभी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, पेन, बैक पेन होता है, कहीं कहीं शोल्डर में होता है, स्पॉन्डिलाइटिस। ये लोगों को विदाउट टच किए हुए एक वर्ल्ड क्लास यूनिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा 40 से 60 सेकंड में 80 से 90% लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। तो वर्किंग वुमन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और मैंने जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और जिनका ऑफिस वर्क है, बैठने का काम है, जो कंप्यूटर जॉब है, इन लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। 100% इनका बॉडी का पेन को क्योर किया जा सकता है। सर, हेयर लॉस के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि किसी का अगर सर गंजा हो चुका तो। देखिए, हेयर लॉस के बारे में सबसे पहला है कि हम लोग हेयर का ख्याल नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह का केमिकल युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे सर के बाल के लिए नुकसानदेह होता है। तो हमारा एक यूनिक एक्सरसाइज है जो हम सिर्फ सर के लिए करते हैं। हम लोग सर से काम लेते हैं अपने ब्रेन का, लेकिन ब्रेन के लिए हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना आँखों के लिए करते हैं। आँखों का भी हम लोग मोबाइल इस्तेमाल में, टीवी में दिन भर काम करते हैं, आँखों को भी हम जरा भी रेस्ट नहीं देते हैं। उसके लिए मैं एक अलग यूनिक एक्सरसाइज डेवलप किया हूँ, जो कि हमारे क्लिनिक आने पे मैं बता सकता हूँ, ओपनली बताया नहीं जा सकता। तो 2 मिनट का हमारा यूनिक एक्सरसाइज है। अगर आप करते हो तो आपका बॉडी का सारे पार्ट्स चुस्त हैं, दुरुस्त रहता है और आपका आँखों का भी कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकता है, माइग्रेन का समस्या है वो भी ठीक हो जाता है। सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, हाउ टू टेक ब्रीथ। और आज तक लोग हाउ टू वॉक नहीं जानते हैं, जिसके कारण घुटनों में प्रॉब्लम होता है। मैं लोगों को सिफारिश करूँगा कि वो जितना कोशिश करें पीछे चलने का, क्योंकि ज़िंदगी भर हम लोग आगे ही चलते हैं। आगे चलने के कारण ही हमारा सारे बॉडी में बैक साइड से सारे पेन होता है, क्योंकि इसीलिए बैक साइड का पेन को ठीक करने के लिए हम लोगों को बैक में चलना बहुत ज़रूरी है। जब भी टाइम मिले अगर हम बैक चलते हैं तो हमारा बॉडी चुस्त है, क्योंकि बॉडी 90 डिग्री एंगल पे होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का पेन धीरे धीरे रिमूव ऑटोमेटिकली होने लगता है। थैंक यू फॉर द टिप्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पार्क होटल में आज हम लोग आए हैं, डॉक्टर सर से भी मिले, उन्होंने बहुत सारे कुछ बताए, आप लोग को टिप्स भी बताए हैं, उसको फॉलो करने से और इनके चैम्बर में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगी वो इनसे सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।